हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। So now we will learn some imprints left by Harshvardhan in his time. What we have this time. So Harsh built many rest houses, wells, as well as step wells, lakes, muds, vihars, chaityas, also prohibited animal slaughter. So he was very kind and he made many things like wells, lakes, muds for Buddhists, and he preserved animals. Every year, he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years, he would organize a full religious congregation congregations at Prayag congregation congregations at Prayag. So यहाँ हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो धार्मिक जो संगति होती थी, मतलब उनके लिए एक मीटिंग होती थी प्रति वर्ष, तो वो उसका आयोजन करता था। और यहाँ पे आज हम जो एक देखते हैं कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो 5 सालों में लगता है। तो ये कुंभ मेला जो शुरुआत हुआ था ना, वो इसके द्वारा ही शुरू हुआ था, हर्ष के समय से, यानी कि हर्षवर्धन ने ही इसको शुरू किया था। प्रति वर्ष 5 साल में ये कुंभ मेला आयोजन करता था और हर साल बुद्ध के लिए बुद्धिस्ट के लिए रिलीजियस संगति करता था, यानी संगति यानी मीटिंग करता था, ठीक है। There he would donate generously till his entire treasury was emptied and would even given away the ornament he would be wearing at that time. सोचिए, इतना बड़ा दानी भी था वो कि अपने शरीर पर जितने भी आभूषण उसने पहन रखे थे, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो दान करता जाता था, ठीक है। तब तक वो दान करता जाता था जब तक उसके पास कुछ ना रहे, इतना दानी था। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाण भट्टा adored his god. बाण भट्ट जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता कवि थे और लिखित के रूप में एक राइटर लेखक थे वो। तो वो उनकी शोभा बढ़ाते थे उनके दरबार की। तो उस समय यानी कि ये बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही हुए थे। बाण भट्ट का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, तो याद रखिएगा। हिज फेमस वर्क, अब बाण भट्ट के कुछ उसने क्या किया, संस्कृत कवि कैसे बना वो, तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं करी, जैसे कि हर्ष चरित्र, कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। आज भी ये जो हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है, ये बाण भट्ट की रचनाएं जो अभी भी प्रसिद्ध है, बराबर। हरीश चरित्र में हरीश के बारे में पूरा चरित्र चित्रण किया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, ठीक है। एंड उसकी इवेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज है हमारी हिस्ट्री के। We come to know about many important aspects of King Harshvardhana's reign from Harsh Charitra. King Harsh himself was a writer. यहाँ तक ये जो कवि हुआ था बाण भट्ट, तो यही नहीं था, वो खुद भी था। हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़ा राइटर लेखक था। He wrote 3 plays, और उसने 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे थे, नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। नागनंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, तो ये 3 प्ले जो है वो हर्षवर्धन ने खुद ने लिखे थे। Here we can see his rule, his empire. So in Thaneshwar he started his journey for his empire, and his empire is here highlighted. Nepal to Bhutan. Here it is a Kamrup situated in Assam, and by the help of his by the help of this king, he fought with Sasank in a gold community.
Here we can see gold community, and here we can see Gujarat, some border, Rajasthan, Kutch, Valbi, Vindhyan. Here we can see this part is as known as Vindhyan forest, and till West Bengal. So we can see it's whose part of his rule as his empire, and may he might expand his this border to southern, but here he have to for fight. He have to fight with he had to fight with Chalukya Pulkeshi II, and he defeated Harshvardhana, and that's why his kingdom is very low in comparison to Chalukya's. So if we can see if Chalukya's king Pulkeshi II is not available, then his empire or boundary may extend it till southern India. Okay, if Chalukya king Pulkeshi II was not available, but he was available and he defeated him. And we can see if he had a victory with Chalukya, then he can also expand his territories to this part. But Chol Chera, and Pandyan here were very powerful in these places during this time. Okay, so let's go ahead. Emperor Harshvardhana's empire, Nalanda University. King Harsh King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silbhadra and made Nalanda into a world famous university. Nalanda became a world famous university because of his efforts, and he gave many assistants to Acharya Silbhadra, and Silbhadra was a principal of that time, and the university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its for its upkeep and maintenance. इसकी मेंटेनेंस के लिए उसने 100 गांव जो है वो दान कर दिए थे कि भाई अब इस नालंदा यूनिवर्सिटी को है वो आगे बढ़ाना है और इसको प्रसिद्ध करना है, प्रसिद्धि इसको प्राप्त करवाना है। तो इसके मेंटेनेंस रख रखाव के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने 100 गांव और बहुत सारा दान भी इसने बैठ किया था। Renowned chemist Acharya Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic, and mercury rust could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक आचार्य थे नागार्जुन, जिसने ये सिद्ध करके दिखाया था कि आयरन, एसेंटिक एंड मर्करी जो है इसके जो एसिड होते हैं, एसिड जो होते हैं, तो वो उसकी मदद से दवाएं निर्मित हो सकती है। तो ऐसे केमिस्ट जो थे वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये बहुत बड़ी फेमस थी, बराबर। यहाँ हम देख सकते हैं नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी। You should know, students had to clear an entrance test for admissions in for admission into Nalanda University. So we can see it's a university, and यहाँ पे जो main gate होता था वहाँ पे entrance exam होता था, entrance exam, बराबर। तो उसको उसमें क्या है कि एक द्वारपाल होता था, तो वहाँ वो आपको क्वेश्चन करता था, कुछ क्वेश्चन आपको पूछता था। अगर आप उसके जवाब नहीं देते थे कोई क्वेश्चन होके, तो आपको यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता था। इतना सख्त उनका नियम था। तो उनकी एंट्रेंस एग्जाम को पास करके ही आप उसमें एंट्री ले सकते थे। फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। The extensive library of Nalanda University was known as Dharamganj। जो उनका बहुत बड़ा एक विशाल जो है ना एक लाइब्रेरी हुआ करते थे उसको धर्मगंज के नाम से जानते हैं, धर्मगंज। इम्पोर्टेंट है धर्मगंज, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन होता था। गुड। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।